بادشاہ محل کے وسیع تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مگر چہرے پر سکون کی جگہ اضطراب چھایا ہے۔ درباری گرد و پیش میں کھڑے ہیں، خوشامد سے لگریز باتیں جاری ہیں، مگر بادشاہ کا دل سن رہا ہے، ایک خاموش چیخ جو اندر سے اٹھ رہی ہے۔ ایک درباری قریب ہو کر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کے فیصلے بے مثال ہوتے ہیں۔ دوسرا سر ہلاتا ہے، آپ جیسا دور اندیش حکمران کہیں نہیں۔ بادشاہ خاموشی سے ان کی باتوں کو سنتا ہے، دل میں ایک خیال گونجتا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربار خالی کروایا، صرف چند قریبی گارڈز اور درباری ساتھ رکھے اور اعلان کیا، آج جنگل کا رخ ہے۔ دل کی بے چینی، شاید قدرت کے پاس کوئی جواب رکھتی ہو، یہ سب میری کمزوریوں سے فائدہ۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب خاموشی نے بادشاہ کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، پتوں کی سرسراہٹ، سب کچھ روح کو چھو رہا تھا۔ بادشاہ کی نظریں ادھر ادھر کسی اشارے کی تلاش میں تھیں۔ اٹھا رہے اچانک بادشاہ کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک جوان شخص ایک بڑے درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، خود سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا، آنکھوں میں روشنی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ کیا بادشاہ رک گیا اور گہری نظروں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ یہ پاگل ہے یا کوئی راز چھپا ہے اس میں؟ درباریوں نے ہنسی دبائی، مگر بادشاہ نے خاموشی سے گہرا سانس لیا۔ واقعی یہ سب میرے خیر خواہ ہیں یا بس؟ بادشاہ نے نرمی سے آواز دی، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو؟ نوجوان ہنسا اور بولا، میں چاہتا ہوں یہ جنگل کاٹ کر محل بناؤں اور میں خود بادشاہ بنوں۔ اس نوجوان کی زبان میں جو اعتماد تھا وہ کسی پاگل کا نہ لگتا تھا۔ پاگل تم ہو اور تمہاری پوری درباری ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے دینے لگے۔ اگر یہ ہمارے درمیان آ گیا تو ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کسی نے آہستہ کہا، بادشاہ کو اسے محل لے۔ بادشاہ نے درباریوں کے مشورے پر عمل کیا اور نوجوان کو نرمی سے اپنے ساتھ محل لے جانے کی دعوت دی۔ نوجوان نے پہلے انکار کیا، مگر پھر چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ جیسے ہی قافلہ محل میں داخل ہوا، نوجوان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سنگ مرمر کی دیواریں، سنہرے ستون، جھومر کی جھلکیاں، سب کچھ جیسے کسی خواب کا حصہ ہو۔ مگر درباریوں کی آنکھیں صرف اس کی پیٹھ پر جمی تھیں۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازم آگے بڑھا اور کہا، بادشاہ سلامت کا حکم ہے، اس نوجوان کے لیے ایک شاندار نشست تیار کی جائے۔ درباری چونک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ تو خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شاندار کرسی بادشاہ کے عین پہلو میں رکھ دی گئی۔ درباریوں کے دلوں میں آگ سی جلنے لگی۔ ہماری نسلیں یہاں بیٹھی ہیں اور آج یہ پاگل یہاں بیٹھے گا؟ رات کے کھانے کے بعد ایک درباری نے کہا، یہ شخص جتنا معصوم دکھتا ہے اتنا خطرناک ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو کل یہ سلطنت بھی لے جائے گا۔ اگلی صبح درباریوں نے اسے ادب سے مخاطب کیا، بھائی صاحب، دربار میں کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر آپ غلطی سے کچھ کر بیٹھے تو سزائیں سخت ہوتی ہیں۔ نوجوان کا چہرہ فق ہو گیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ایک درباری ہنسا، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں۔ دربار میں اگر کوئی بادشاہ کو تھپڑ مارے تو بادشاہ خوش ہوتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے۔ نوجوان نے معصومیت سے کہا، بس اتنی سی بات، میں تو لٹ بھی مار سکتا ہوں۔ درباری اپنے کمرے میں ہنسی دبا نہ سکے۔ کل یہ خود اپنی بربادی لے آئے گا، پھر دیکھتے ہیں بادشاہ کیسے بچاتا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے نہ سوچا تھا
कि तकदीर उनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। अगली सुबह दरबार सजा। बादशाह तख्त पर बैठने ही वाला था कि नौजवान ने लपक कर आकर एक जोरदार थप्पड़ उसकी गर्दन पर दे मारा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का ताज जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही ताज जमीन से टकराया, नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकाल आया। सब दम बखुद महल में जश्न की फिजा थी। नौजवान के लिए शाही दावत रखी गई और बादशाह ने उसे इनाम में एक खूबसूरत महल अता कर दिया। मगर दरबारियों के दिलों में आग भड़क रही थी। ये पागल हर दिन हमारा मकाम छीन रहा है। अगली सुबह दरबारी दोबारा उसके महल पहुंचे। चेहरे पे मुस्कुराहट मगर अंदर नफरत। भाई साहब, कल आपने जो थप्पड़ मारा, अगर ना मारते तो आप पे शक होता। आपने बादशाह को बचाकर दिल जीत लिया। हक की बार जब बादशाह बैठने लगे तो फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। समझो आधी बादशाहत तुम्हारी। नौजवान हंसा। 2 कुर्सियों से क्या डरना, मैं खींच लूंगा। दरबारी अपने कमरों में वापस जाकर एक दूसरे से कहने लगे, ये बार गिरा तो बच नहीं पाएगा, फिर वो ही होगा जो हम चाहेंगे। दरबार सजा। बादशाह आकर कुर्सी पर बैठने लगा। नौजवान ने फौरन कुर्सी खींच ली, लेकिन अचानक बादशाह संभल गया। गिरने से पहले खड़ा हो गया। पीछे देखा, कुर्सी का एक पाय पहले से टूटा हुआ था। बादशाह ने फौरन नौजवान को देखा, फिर नरमी से कहा, अगर तुम ये हरकत ना करते तो शायद मैं बुरी तरह गिर जाता। तुम फिर से मुझे बचा गए हो। बादशाह ने उसे तमगाए इम्तियाज अता किया और ऐलान किया, ये मेरे लश्कर का सिपाह सालार होगा। दरबारी दम बखुद रह गए। वो जिन्होंने साजिश की खुद गवाह बन गए कामयाबी के। महल में वापसी पर दरबारी एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। ये मामला हाथ से निकल रहा है। अगर ना रोका तो कल हम सब इसके गुलाम होंगे। उन्होंने फैसला किया, अब सिर्फ एक रास्ता है, इसे खत्म करना होगा। साजिश तय पा गई। अगला वार दुश्मन रियासत के जरिए होगा। दूसरी रियासत के बादशाह को खुफिया पैगाम भेजा गया, हम अंदर से तुम्हारी मदद करेंगे, तुम सिर्फ जंग छेड़ दो। हदफ एक ही है, वो पागल। महल की फजा बदल चुकी थी। दरबारियों ने खुद को जख्मी करके बादशाह के सामने फरियाद की, हम पर दुश्मन ने हमला कर दिया, अगर आपने कुछ न किया तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। बादशाह ने गहरी सांस ली और ऐलान किया, जंग होगी। पूरा लश्कर महल से निकला। सिपह सालार के तौर पर वही नौजवान आगे था। वो जो कल तक पागल कहलाता था, आज एक पूरी सल्तनत का मुहाफिज बनकर निकला। पीछे सिर्फ दरबारियों की मुस्कुराहटें थीं, जहर में बुझी हुई। लश्कर दुश्मन रियासत की सरहद पर पहुंचा। दोनों तरफ अफवाज तैयार। नौजवान ने हाथ उठाया, सब रुक जाओ। सिपाहियों ने चूक कर देखा। सबसे पहला मैं लड़ूंगा, अकेला। वो आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में पुकारा, ए दुश्मन के बादशाह, मैदान में आ, मैं तुझसे तन्हा लड़ूंगा। झाड़ियों से एक कदावर बादशाह निकला, आंखों में नफरत, हाथ में तलवार। अचानक झाड़ियों से एक खौफनाक शेर निकल आया। दुश्मन बादशाह पर झपटा। अफवाज चीख पड़ी। नौजवान तेजी से आगे बढ़ा, तलवार खींची और शेर से टकरा गया। एक खतरनाक जंग के बाद नौजवान ने शेर को मार गिराया। खुद लहूलहान मगर सांस लेता दुश्मन बादशाह को कंधे पर उठाकर वापस लाया। सब दंग रह गए। एक खतरनाक जंग के बाद नौजवान ने शेर को मार गिराया। खुद लहूलहान मगर सांस लेता दुश्मन बादशाह को कंधे पर उठाकर वापस लाया। सब दंग रह गए। दुश्मन बादशाह ने कहा, लेकिन ये याद रखो, जो लोग तुम्हारे अपने होकर तुम्हें बीच आएं, उन पर कभी एतबार न करना। तुम्हारे मुशीर,
हमें बुलाने वाले वही थे। नौजवान ने तलवार निकाली और धाड़ा, अगर मेरे मुशीरों को हाथ लगाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बादशाह ने देखा, ये पागल नहीं, ये इंसानियत का अलंबरदार है। वापसी पर बादशाह ने अपनी बेटी का हाथ नौजवान के हाथ में दे दिया। दरबारी खामोश, आंखों में जलन, जुबानों पर ताले। एक पागल तकदीर का बादशाह बन चुका था। दोनों सल्तनतों की दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी थी। नौजवान, जो कभी पागल कहलाता था, अब दो रियासतों का रिश्ता जोड़ चुका था। लोग खुश थे, दरबारी खामोश। मगर उनकी खामोशी एक नई साजिश का आगाज थी। महल में दरबारी एक दूसरे को नजर चुराते फिरते। ये तो रोज नया अरूज पा रहा है, अगर आज ना रोका तो कल हम उसके गुलाम होंगे। एक बूढ़ा मुशीर उठा और सबको मुखातिब किया। याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत दे कोई जलील नहीं कर सकता। तुमने पहले भी उसे गिराने की कोशिश की, क्या हुआ? तुम्हारे हसद से सिर्फ उसकी इज्जत बढ़ी है। मगर नौजवान मुशीरों ने एक दूसरे से कहा, यह बूढ़ा डर गया है, हम डरने वाले नहीं। अब की बार फैसला आखिरी होगा, उसे खत्म करना ही पड़ेगा। उन्होंने दिन में कुछ न कहा, मगर रात को महल के नीचे तय खाने में जमा होकर साजिश तैयार की। अब जो हमला होगा वो बाहर से नहीं, अंदर से होगा। जहर, खंजर और झूठ सब तैयार था। दूसरी तरफ नौजवान दिन ब दिन लोगों के दिलों में जगह बनाता जा रहा था। हर तरफ उसकी इंसाफ, शुजात और नरमी के चर्चे थे। लोग कहते, अगर यही पागल है तो हमें सब पागल चाहिए। नौजवान अब भी दरबारियों को अपना खैरखा समझता था। वो उनके लिए खड़ा होता, उनकी बात मानता, हत्ता कि उनके दुख भी सुनता। मगर वो नहीं जानता था, साजिश अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुकी है। कल की रात जब वो तन्हा महल में आराम करेगा, हम खामोशी से उसे हमेशा के लिए सुला देंगे और इल्जाम किसी दुश्मन पर डाल देंगे। मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। रात को बारिश हुई। नौजवान का कमरा टपकने लगा। उसे नींद ना आई और वो बाहर निकल आया। ऐन उस वक्त जब कातिल अंदर घुसे। सुबह सूरज निकला और खबर फैली, कत्ल नाकाम रहा। दरबारियों के चेहरों पर हवाइयां थीं। बूढ़े मुशीर ने उन सबको, नौजवान कई दिनों से खामोश था। महल की चहल पहल में भी वो अलग थलग नजर आता, जैसे उसे सब कुछ मालूम हो चुका हो, जैसे वो आखिरी सच्चाई को दिल से महसूस कर रहा हो। दरबारी अब झुके झुके रहते थे। न जबान में जहर था, न आंखों में नफरत। बूढ़े मुशीर की नसीहत दिल में घर कर चुकी थी, मगर वक्त शायद खत्म हो चुका था। बूढ़ा मुशीर नौजवान के पास गया, हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हम सब गलत थे और तुम हमेशा सच पर थे। अल्लाह तुम्हें इस सच का बदला जरूर देगा। उसी रात नौजवान ने ख्वाब देखा, एक बाग, रोशनी, परिंदे और दूर एक दरवाजा जिसके पार सिर्फ सुकून था। सुबह उठा, मुस्कुराया और कहा, आज मुझे रुखसत होना है। फजर के वक्त दरवाजा खोला गया। नौजवान का जिस्म साकित था, चेहरा मुस्कुराता हुआ जैसे सो गया हो। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। एक पागल हमेशा के लिए सो गया था। बादशाह खुद आया, सर झुकाया और बुलंद आवाज में कहा, आज से इस दरबारी को नहीं, इस सच्चे इंसान को सलाम किया जाएगा। हमने उसे देर से पहचाना, मगर हमेशा याद रखेंगे। रियासत के कोने कोने से लोग आए। कोई कहता, यही मेरा इंसाफ था। कोई बोलता,
यही मेरे बच्चे का हमदर्द था। और सब एक ही बात दोहराते, ऐसा पागल हमें दोबारा न मिलेगा। आखिरकार दरबारी बादशाह के सामने खड़े हुए। हम शर्मिंदा हैं, हमने दुश्मनी की, मगर वो हर बार हमें मुआफ करता रहा। वही असल बादशाह था। बादशाह ने ऐलान किया, हर बच्चे को उसके किस्से पढ़ाए जाएंगे। यहां एक मदरसा बनेगा जहां वही सिखाया जाएगा, सच, इखलास और अल्लाह पर यकीन। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी इस पागल का किस्सा जिंदा है। लोग कहते हैं वो पागल था जो सच बोलता था, सच सहता था और आखिर में सच जीत गया।